right? तो कल का पेपर हम क्लास के अंदर करेंगे with parts, right? तो we'll apply different strategy in doing that paper. ठीक? So I'm moving on now. Listen my words please very carefully. Very important. So there we go. I hope you all can see my screen now. Sir. The act will show us. Excuse me, sir. So guys, everyone, let's start off. And there we go. Okay, everyone. So I hope that you have gone through this ATP. Let's start off with the discussion. You can see that it's a thermal decomposition question going on. Sodium bicarbonate will decompose कर रहा है और हम CO2 gas collect कर रहे हैं. The apparatus A, I think it's gas syringe. Give a test for carbon dioxide gas. I think it turns lime water milky. CO2 turns lime water milky. The diagram below shows the apparatus A at the completion of the reaction. The carbon dioxide collected is shown at RTP. ठीक हो गया. What is the volume of gas collected? So I think it's 62, 64, 66. Yeah. So it is 66. Each calibration is 2 cm cube. So it's 66 cm cube. Use the answer to C. Calculate number of moles of CO2 gas collected. ठीक है. Moles equals to molar gas. आपको ये formula याद है ना? V is equals to moles into molar gas volume. So इसका मतलब our moles will be equal to volume is 66 over 24,000. ठीक. So the answer is I think 2.75. 10 is to power minus 3 moles. Okay. E part 1. Using the equation for the reaction and your answer to D, calculate number of moles of NaHCO3. So I think that is CO2 or NaHCO3 react in 2 ratio 1. Isn't it? तो फिर moles of sodium bicarbonate क्योंकि इसको multiply by 2 हो जाएगा. ठीक है. तो it'll be equal to 2.75 10 is to power minus 3 into 2. So I think this is 0.055. Okay. Calculate relative formula mass of NaHCO3. ठीक है. NaHCO3. So it is 23 plus 1 plus 12 plus 16 into 3. I think it's 84. Calculate mass of this. So 0.0055 into 86 will become the mass. That is 0.462 grams. Easy. Question 2. A student does an experiment as shown. Take a diffusion sort of experiment. What is the color of bromine vapor? Brown liquid, orange liquid, it's your discretion. He carefully removed the glass test. I'm rewinding it a bit. Rewind to part E. To allow the So this is part E, right? सर एक सवाल था सर जी, but just a minute only.
जी बच्चा, so wouldn't the mass mole, नहीं इसका इसका mass सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका मोलेकुलर मास 80 से आ रहा है, 84 आ रहा है. 23 plus 1 plus 12 plus 48. 23 plus 1 plus 12 plus 48. हाँ 84 है, सॉरी 84, 86 नहीं है. इसको 84 कर ले प्लीज. I think it's a mistake. It is actually 84 into 0.0055. असल में मैंने आंसर ठीक लिखा हुआ है, वो it's not 86, मैंने गलती से 6 लिख दिया, it's actually 84. It's a mistake. अच्छा, वो कहते हैं E part 1 में वो कहते हैं use the equation for the reaction and your answer to D. Calculate the number of moles of hydrogen carbonate using the experiment. देखिए जी, जो पार्ट डी में ये मोल्स निकालने आपने कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है. सो बेसिकली अगर हम रेशियो अप्लाई करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट्स 1:2. Na8CO3 और CO2 1:2 में. इसलिए जो मोल्स आ रहे हैं CO2 को उसको इंटू 2 करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के. Okay, I'm moving on. Great. Sir, I have a question. Yes, please. सर अगर इस तरह एटीपी में मोल्स क्वेश्चन आते हैं, अगर इसमें हमारा एक पार्ट गलत हो जाए तो सर उससे ऑटोमेटिकली सारे पार्ट्स गलत हो जाते हैं, इसमें एरर कैरेट फॉरवर्ड होता है? नहीं, यहाँ पे ECF होता है. राइट सर. एक सवाल है सर. जी बच्चा. सर मैं पास पेपर कर रहा हूँ सर, मैंने इसके अंदर एक बात नोटिस की थी कि सर जो केमिस्ट्री के पास पेपर है सर, उसमें जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो सर उसके अंदर हम लोग 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस आते हैं तो सर आंसर गलत आता है. तो सर आइडियली हमें वर्किंग के दौरान कितनी डेसिमल प्लेसेस पे काम करना चाहिए? ओके, सो बेसिकली जब आप अपनी मोल्स की कैलकुलेशंस कर रहे हो ना, और लेट्स से आपने एक पार्ट किया, अब जो अगले पार्ट में वो पिछले पार्ट का आंसर यूज होना है, आपने करना ये है कि जो आपके आंसर कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ रहा है उसको आपने कैरी फॉरवर्ड करना होता है फॉर द नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेशन. इसलिए आपने अपने कैलकुलेटर बार बार वो एच नहीं दबाना, उसको जीरो नहीं करना बार बार, आपने वही आगे फर्दर यूज करनी है वैल्यूज. लेकिन जब आप उसको लिखेंगे तो लिखना आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होता है. लिखेंगे 3SF तक, लेकिन अगर वो आपने वैल्यू अगले पार्ट में यूज करनी है तो फिर आप वैल्यू वो यूज करेंगे जो कि आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ रही है. सर बट वो एक्यूरेट नहीं आता उससे. मैंने देखा ना सर, अगर हम लोग वो कैलकुलेटर में आंसर इस्तेमाल करें ना तो सर वो आंसर डिफरेंट होता है मार्किंग स्कीम से. तो मार्किंग स्कीम में कैलकुलेशन होती है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स से मैक्सिमम. सर मैं वो यही पूछने लगा था कि सर उसके अंदर इतना इशू आ रहा था कि मैं जब पूरी वैल्यूज इस्तेमाल करता हूँ लाइक 5 या 6 to 7 जो उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस होती थी, तो जब वो इस्तेमाल करते थे तो सर हमेशा आंसर गलत आता था. मार्किंग स्कीम आपने में वही करना है. नहीं, आपने वही करना है. आई वंडर मार्क्स की आंसर गलत क्यों लिखा हुआ है, राइट? क्योंकि इट इज अ रूल. It's a rule basically for O level and A level both. O level IGCSE and A level all. बल्कि AQA OCR भी ऐसे ही है कि जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे वैल्यू आएगी एक पार्ट में, अगर आपने अगले पार्ट में वैल्यू आगे यूज करें तो आप कैलकुलेटर की स्क्रीन की वैल्यू आगे यूज करेंगे, लेकिन उसको लिखेंगे 3SF के मुताबिक ऑन द शीट. ठीक है सर. Okay, so in your way you have to do like this. Moving on, guys. So कहते हैं what is what color is the bromine vapor? तो bromine vapor is brown. I hope you know कि bromine liquid भी brown होता है, bromine vapor भी brown होता है. He carefully removed the glass disc to allow the contents to mix. ये glasses remove करता है, पहली बात है bromine vapors ऊपर जाएंगे, air नीचे आएगी, diffusion शुरू हो जाएगी. तो अगर हम एक glass disc को remove करेंगे तो what happens? Air will diffuse and bromine vapor will also diffuse. Vapor ऊपर जाएगा, air नीचे आएगा. बस फर्क इतना है कि ब्रोमीन वेपर्स ऊपर जाते हुए दिखेंगे, एयर नीचे आती हुई दिखेगी नहीं, व्हाई इट्स कलरलेस, लेकिन मूवमेंट वो भी हो रही है. देयर इज रैंडम मूवमेंट ऑफ ब्रोमीन वेपर्स एंड द एयर मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इट्स कॉल्ड एज डिफ्यूजन.
What change, if any, is seen in the British immediately after the disc is removed? Immediately. So you see the brown. सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। will आवाज क्या हुआ है? एयर नीचे आती तो दिखेगी ना, लेकिन एक सेकंड ठहर जरा, मैं देखूं मेरी आवाज को क्या हुआ। branch structure of alkene showing all the अच्छा, यहाँ तक मेरी आवाज को कोई मसला हो गया था। चलिए मैं खुद रिपीट करता हूँ। तो वो कहते हैं he carefully removes the glass disc to allow the contents to mix. What change, if any, is seen in the apparatus immediately after the disc is removed? So of course the brown fumes, they begin to move up in the tube, right? Or in the gas jar, you can say. So we describe the appearance of the contents of the gas jars after a few minutes. When I'll say after a few minutes, the brown fumes are observed in both the gas jars. It becomes homogeneous. Both gas jars become homogeneous. कि जब brown भी ऊपर जाएंगे या नीचे आएगी, एक वक्त आएगा rate of diffusion same हो जाएगा. When the rate of diffusion is same, so brown color will be homogeneous in both the gas jars. And name the process taking place in the process, so it's called as diffusion. branch structure of alkene showing all the bonds. So unbranched, Let's start off. unbranched, and a branch structure of alkene showing all the bonds. So unbranched, तो I think जो मर्जी मिला लें, butene मिला लें, butene मिला लें, it's your discretion, ठीक है? Showing all the bonds. So let's say मैंने butene बना लिया, आप बेशक butene बना लें, ये unbranched हो गई or branched. This is branched. सर ये 2-methyl propene होएगा ना? How do the two structures? Yes. एक हो गया ब्यूटीन कहते हैं या उसको ब्यूटवानिन कहते हैं, और जो दूसरा वो 2-methyl propene है. And they both are alkenes. They both are isomers of each other. In C1 show that alkenes are unsaturated. तो आप aqueous bromine पास करें तो right. और structures वो sorry मैं सर आवाज नहीं आ रही फिर से। So I think इसमें double bond है तो alkene है. अगर वो test पूछे तो aqueous bromine. So right. What's the difference between branch and unbranched? देखिए जी, जो unbranched का मतलब है straight chain compound, जैसा ब्यूटीन है. ब्रांच का मतलब है कि एक आपने कार्बन उठा के कोई आपने बीच वाली जो है कार्बन से लगाया हुआ है. सो ब्रांच मींस कि उस चेन से आपने कार्बन को उठा के बीच वाले कार्बन से ब्रांचिंग लगाई हुई है. स्ट्रेट चेन मींस अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कार्बन एटम्स इन अ सीक्वेंस. Part 2. How do the two structures in C1 show that alkenes are unsaturated? तो दोनों alkenes क्यों unsaturated है? So why? Because they have a double bond, right? So both have C double bond. इसलिए they are unsaturated. Can we draw a cyclic structure? Well, no, we cannot draw a cyclic structure, please. What would the name of branch structure be? Branch compound का यहाँ पे नाम है, देखिए जब आप नाम रखते हैं तो longest carbon chain यहाँ पे प्रोपीन है ना, 3 कार्बन की है branched में. It's of 3 carbons, propene. Second पे आपका methyl लगा हुआ है, तो it's like 2-methyl propene. Unbranched is butene and branched is 2-methyl propene. So that the compound is unsaturated. Now guys, it's D part 1. How will aqueous bromine show that a compound is unsaturated? I hope you know that. I hope you know that कि alkanes और alkenes का टेस्ट होता है. अगर आपने दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो तो हम aqueous bromine यूज करते हैं. Alkene में एडिशन रिएक्शन तो वो ब्राउन टू कलरलेस हो जाती है, लेकिन alkane रिएक्ट नहीं करता, राइट? तो इसलिए whenever we distinguish alkenes from alkanes, we always use aqueous bromine, and the color observation is brown to colorless. ठीक है, aqueous bromine is brown and the compound it forms the alkene is colorless. So it's brown to colorless. Okay, so you pass the compound through aqueous bromine,
and it turns from brown to colorless. Okay, then construct an equation for the reaction between C4H8 and aqueous bromine. तो आप ऐड कर दें C4H8 plus Br2 gives you C4H8 Br2, and I hope you know that addition happens across double bond. So C4H8 plus Br2 gives C4H8 Br2. Addition reaction, है ना? Because alkenes show addition reactions. Question 3. So guys, it's question 3 now. Which of the following reactions involve... Okay. Which of the following reactions involving ethanol is not correct? हाँ जी, क्या आंसर होगा? Ethanol can be produced by the catalytic addition of steam to ethene. बिल्कुल ठीक है. Ethene में आप steam add करें, ethanol बनता है. Complete combustion of ethanol produces carbon in water. Yes. Organic compounds completely combustible with CO2 in water. Ethanoic acid is formed by the reduction of ethanol. For God's sake, ethanoic acid is formed by the oxidation of ethanol. This is incorrect. C is the answer. Or D भी ठीक है, क्योंकि ethanol reacts with carboxylic acid to give you an ester. D is right. A, B, D is right. C is wrong. C is the answer. Which of the ethanol से ethanoic acid बनता है oxidation? Which statement involving ethanol is not correct? So, ethanoic acid is formed by oxidation of ethanol, not by reduction. ठीक है? So C is the answer. बाकी तो correct है. 4. Which gas changes the color of acidified dichromate from orange to green? Yani it should be a reducing agent. So I think the answer is D, sulfur dioxide. Question 5 now. The diagram below shows the results of a paper chromatography experiment to find the RF value of substance X. From the experiment, the RF value of X is approximately. अब जाहिर सी बात है ये 0.2, 0.5 तो हो नहीं सकता, ठीक है, और 1 बिल्कुल नहीं हो सकता, R1 कभी होती नहीं है, कि 0.5 होगा मिडवे, 0.2 होगा तो मिडवे से नीचे, तो ये मिडवे से ऊपर है X, तो I think 0.8 suits a lot. A student finds that a hydrocarbon contains 88.9% biomass of carbon. What is its empirical formula? So carbon ratio hydrogen. So I hope you know that how to find the empirical formula. I mean 88.9 अगर carbon है तो फिर hydrogen निकाल के आप उसको 100 से minus कर दें. And I hope you know that you calculate its moles and mole ratio, and then mole ratio is the empirical formula. अगर ये 88.9 है तो ये कितना हो जाएगा? Let me bring the calculator please. Okay, I can do it very quickly for you. So 11.1, ये भी divide by 12, divide by 1. ये हो जाएगा 7.4 और ये 11.1. तो 7.4 divide by 7.4, तो it's 1 ratio. .5 तो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2:3. तो आई थिंक इट्स C2H3. ठीक है ना? आई होप यू नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय द वे, राइट? आप पहले जो परसेंटेज बाय मास है उसके आप पहले मोल्स निकालें, राइट, बाय AR करके मोल्स आके मोल रेशो ली, और अगर केस को 0.5 का, 0.4 का, 0.6 का आता है, लेट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप फिर मल्टीप्लाई करते हैं उसको होल नंबर से, लीस्ट होल नंबर से, नॉट 1 ऑफ कोर्स, देन 2 या 3 कि वो होल नंबर बन जाए. तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो होल नंबर बन गया. सो विच मेक्स C2H3 एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. Aqueous NaOH react with sulfuric acid. Which of the following? नहीं बेटा 1.5 कभी आप राउंड ऑफ नहीं करते, ये बात हमेशा याद रखनी है. मैंने हमेशा मोल से पढ़ाया आपको कि कभी भी 0.5 वाली फिगर राउंड ऑफ नहीं करनी, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है विद द लोएस्ट होल नंबर, एंड द लोएस्ट होल नंबर इज 2. क्योंकि 1 से करेंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, ठीक है? तो प्लीज डोंट फॉरगेट इट. Solutions of NaOH will produce 1.42 grams of sodium sulfate when reacting with an excess of sulfuric acid. Okay. तो बेसिकली 1.42 ग्राम
ये आपको उसका एमआर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड करूँ इसको 142 से तो मैं इसके मोल्स निकाल लूँगा, ऐसी है ना। तो 1.42 डिवाइडेड बाय 142, तो द आंसर इज 0.01 मोल। और इसकी कितने होंगे 0.02 मोल पे, क्योंकि 2:1 है। अब आपने देखना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से विच वंस हैव 0.02 moles. I think the answer should be C. क्योंकि 5 4s are 20 होता है ना, तो 2 आ जाएगा। There we go. Sir, could you please repeat question 7? ये सही समझ नहीं आया। Okay. So basically वो कहता है कि aqueous sodium hydroxide reacts with sulfuric acid. ठीक है, आप देख रहे हैं Na sulfuric acid 2:1 में react कर रहा है. Which of the following aqueous solutions of NaOH will produce 1.42 grams of sodium sulfate? अगर 1.42 ग्राम्स बनाने हैं सोडियम सल्फेट के, तो आपने कितने मोल्स बनेंगे सोडियम सल्फेट के? तो आप उसके मोल्स निकाल लें कि टेक्निकली कितने मोल बन रहे हैं सोडियम सल्फेट के। उसका मोलेकुलर मास इज 142, तो 1.42 और 142 ये आ गया 0.01 मोल। अगर 0.01 मोल बनाने हैं आपने सोडियम सल्फेट के, तो आपको कितना NaOH रिक्वायर्ड होगा? क्योंकि सारी ऑप्शंस NaOH के ऊपर हैं, तो आपको NaOH रिक्वायर्ड होगा 0.02। तो 0.02 मोल्स आपको NaOH के रिक्वायर्ड है टू फॉर्म 1.42 ग्राम सोडियम सल्फेट। अब देखना यह है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से विच वन इज 0.02 मोल्स। सो आई थिंक ऑप्शन सी में इट्स 0.02 मोल्स। जो बाकी ऑप्शन में तो मोल्स निकल रहे हैं 0.02। सर मतलब आपने कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई सर ऊपर हाँ सर वो आपने लिखा हुआ 0.01 मोल्स, वो आपने आंसर लिखा चालू रेशियो लगाया। नहीं, वो जो मैंने 0.01 मोल लिखे वो मैंने लिखे हुए सोडियम सल्फेट के। अगर 1.42 ग्राम दिया ना सोडियम सल्फेट का, तो कितने मोल होंगे? तो 1.42 डिवाइड बाय 142 तो इक्वल 0.01 मोल्स। तो 0.01 मोल्स अगर सोडियम सल्फेट के बन रहे हैं, तो कितना NaOH रिएक्ट करना चाहिए? तो 0.02 रिएक्ट करना चाहिए ना, क्योंकि वो 2:1 में है। अब आप ऑप्शन ए बी सी डी में अप्लाई करेंगे फॉर्मूला C इंटू V और देखेंगे किसके 0.02 मोल निकलते हैं। तो ऑप्शन सी में 0.02 मोल देते हैं C इंटू V करके। डू आई मेक सेंस? सर आवाज नहीं आ रही। Yes, yes. I'm going to दोबारा. So basically, जो ना iron 2 sulfate crystals have the formula FeSO4.xH2, where X is a whole number. यानी कि ये है water of crystallization का concept. A student, he determines the value of X using aqueous potassium manganate. I think this is an example of redox reaction. Now ये redox titration होने लगी है. Potassium manganate react करेगा FeSO4 के साथ. पोटेशियम मैग्नेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो FeSO4 में Fe2 पॉजिटिव विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो पोटेशियम मैग्नेट Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज करेगा और वो खुद कलरलेस हो जाएगा। सो पोटेशियम मैग्नेट इज पर्पल and oxidizes iron 2 ions to iron 3 ions, as I said you earlier. A sample of iron 2 sulfate crystals is added to a previously weighed container, which is then reweighed. Mass of container plus crystals is 10.94 and mass of container is 5.98. Calculate the mass of FeSO4 crystals. I think minus कर देंगे, simple, right? So it's 4.96. यानी कि 4.96 grams आपने लिए FeSO4 के। अब वो कहता है in part B, the student transfers the sample of FeSO4 crystals, which is 4.96 grams, right, to a beaker and adds sulfuric acid. The solution is made up to 250 cm³ with distilled water and mixed well. This solution is G. अच्छा, यहां पे अब आप ना तो रेडी हो जाए, मैं आपसे बात करने लगा हूं, ठीक है? वो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि हमने
सॉल्यूशन जी कैसे बनाई? तो जब आपने 4.96 ग्राम्स को आपने डिसॉल्व किया सल्फ्यूरिक एसिड में इन अ बीकर, तो फिर आप ये ट्रांसफर करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। फिर हमने ये सॉल्यूशन ट्रांसफर की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, फिर आपने उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया अप टू 250 cm क्यूब मार्क, फिर आप उसको शेक करते हैं thoroughly to obtain the homogeneous mixture. So I hope you remember that 250 cm cube solution is made in a volumetric flask. Whether this solution is G, using a pipette, 25 cm cube of G is measured into a conical flask. उसने इसका 25 cm cube निकाला है, ठीक है, और उसने डाल दिया conical flask में. F is put into a burette, यानी कि F मतलब potassium manganate, and run into the conical flask containing G. What is the color of the solution in the flask? श्रेणी जी बताएं. F ऐड करने से पहले सॉल्यूशन में आयरन सल्फेट है, या तो आप लिख दें पेल ग्रीन लिख दें या कलरलेस लिख दें, आपकी मर्जी है. If anyone writes colorless, it's fine. अगर fine, अगर ग्रीन लिखा ग्रीन भी ठीक है, it's fine, right? तो मैं अब आपको दिखा रहा हूं बेसिकली. वो देखें, आपने FeSO4.X H2O को ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड में, right in a beaker like 100 cm cube, आपने इसको और फिर आपने इस सॉल्यूशन को ऐड किया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, फिर आप इसको डाइल्यूट कर दिया पानी डाल के, राइट? इसको आपने सॉल्यूशन जी का है. दिस सॉल्यूशन D 250 cm क्यूब. इसमें से आपने 25 cm क्यूब निकाला और आपने उसको डाल दिया कॉनिकल फ्लास्क में, और ऊपर से आप F ऐड करने, जो कि पोटेशियम मैंगनेट है, ऑफ 0.02 मोल पर डीएम क्यूब. ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम लिख दिया है ताकि एटलीस्ट आपके ब्रेन्स में रहे. अब सॉल्यूशन जो 25 cm क्यूब है बेसिकली, उसका कलर क्या है? अगर किसी ने लिख दिया कलरलेस, इट्स फाइन. किसी ने लिखा पेल ग्रीन, इट्स फाइन. किसी ने लिखा ग्रीन, इट्स फाइन. अब जब आपने ऊपर से पोटेशियम मैग्नेट डालना शुरू किया, आप डाल रहे हैं पर्पल सॉल्यूशन. जैसे आप पर्पल डालेंगे वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि आयरन टू आयंस रिएक्ट कर जाएंगे. अब आप जो पर्पल डालते रहेंगे वो कलरलेस होता जाएगा, डालते रहेंगे कलरलेस होता रहेगा, डालते रहेंगे कलरलेस होता रहेगा. एक वक्त आएगा जैसे अंदर से आयरन टू आयंस खत्म होंगे, सो आपने जब ऊपर से डालेंगे मैंगनेट तो सॉल्यूशन पेल पिंक अपीयर करेगी. इसका मतलब रिएक्शन खत्म हो गया, इसका मतलब अंदर से आयरन टू आयंस खत्म हो गए. सो देयरफॉर द एंड पॉइंट इज पेल पिंक. और अगर आपने पोटेशियम मैंगनेट और डाल दिया तो वो पर्पल हो जाएगा, राइट? सो इसलिए प्लीज रिमेंबर, आयरन टू आयंस आर ग्रीन इन कलर, प्लीज डोंट फॉरगेट इट, ठीक है? या कलरलेस लिख दें या पेल ग्रीन लिख दें. फिर एंड पॉइंट पे कलर इज पेल पिंक, क्योंकि द लाइटर शेड ऑफ पर्पल इज पेल पिंक. लाइटर शेड ऑफ पर्पल इज पेल पिंक. जब आपने ऊपर से पोटेशियम मैंगनेट डालते रहे, वो पर्पल सॉल्यूशन डालते रहे, वो कलरलेस होता रहा. एक वक्त आएगा जब अंदर से आयरन टू आयंस खत्म हो जाएंगे फ्लास्क में से, तो जब ऐड करेंगे मैंगनेट तो सॉल्यूशन पेल पिंक अपीयर करेगी, और वहीं पे यू विल स्टॉप and you'll claim that the titration is over, end point has been achieved. No, if you write purple, it's wrong, Fatma. You can't write purple. इस तरह देखें ना, Okay. greenish है, ये ऊपर से आप ऐड कर रहे हैं पर्पल. So flask में solution green है, और F जो है बेसिकली वो पर्पल कलर का है. जब आपने ऊपर से पर्पल कलर ऐड किया, ठीक है, तो वो कलरलेस होता रहेगा. You add, it turns colorless. You add, turns colorless. फिर एक वक्त आएगा जब अंदर से आयरन टू आयंस खत्म हो जाएंगे. जैसे आयरन टू आयंस खत्म होंगे तो सॉल्यूशन जो है वो आपको जो पेल पिंक दिखेगी. वैसे अंदर आयरन 3 आयंस भी बन रहे हैं, लेकिन वो भी इंतहाई पेल ब्राउन होते हैं. They also appear as colorless. तो इतना ब्राउन दिखता नहीं आपको. सर एक चीज समझ नहीं आई फिर इसमें जी सर, हम पर्पल क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आयरन ना बेटा, वो तो ना मेरा बच्चा, जब देखो, जब आप ऊपर से पोटेशियम मैंगनेट डाल रहे हो वो पर्पल कलर का है, नीचे आयरन टू आयंस हैं. जब आप पोटेशियम मैंगनेट डालते जा रहे हैं, आयरन टू आयंस रिएक्ट करते जा रहे हैं, सॉल्यूशन पर्पल से कलरलेस होती जा रही है. फिर आप जो एंड पॉइंट आप स्टॉप कहां करेंगे ऐड करना मैंगनेट, कि जहां पे जो सॉल्यूशन फ्लास्क से पड़ी है वो उसे कलरलेस ना करे.
सो जब आप आखिरी ड्रॉप ऐड करेंगे मैग्नेट का तो वो तो अंदर पेल पिंक अपीयर करेगा ना। सोल्यूशन अंदर कलरलेस है, ऊपर से आप डाल रहे हैं पर्पल ड्रॉप, तो वो पेल पिंक अपीयर करेगा, पर्पल अपीयर नहीं करेगा। राइट सर। अब ये उसने टाइट्रेशंस की हैं, एज यू कैन सी एवरीवन। So let's write the numbers. I think initially 0.0 है. Initial period reading 0.0. अच्छा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट 0 लिखते हैं, प्लीज ये मत कीजिएगा। 1 आपको डेसिमल प्लेस तक आपने लिखनी है टाइट्रेशन वैल्यूज 1 dp तक, 39. तो 0.0 लिखना है, 0 लिखना, हाँ आपका नंबर काटेंगे पेपर में। This is 8.9. This is 31.3. This is 22.4. क्या सवाल है? So is it becoming colorless because SO2 is released? नहीं बेटा, it is becoming colorless because iron 2 ions are reacting with potassium manganate. Now, which one is the best titration? तो जो आपस में करीब हैं, I think titration 2 and 3. And what's the average volume? तो दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो it's 2.3 cm3. So ये है वॉल्यूम पोटेशियम मैग्नेट जो कि रिक्वायर होगा Calculate moles of उसको magnesium. टाइट्रेट करने के लिए। Moles equals to 0. कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम मैंगनेट, तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम। जी सर ये आपकी बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट कैसे निकाला? आपने बेसिकली दो बेस्ट लिखी हैं जो कि दो करीब होती हैं आपस में। आप यहाँ पे 2 and 3 करीब है, 1 and 3 करीब भी हो सकती है, 1 and 2 भी करीब हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 करीब है। जो दो वैल्यूज आपस में बहुत क्लोज होती हैं, हम उनको टेक करके उनकी एवरेज लेते हैं। ओके, अब वो कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम मैंगनेट, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.02 मोलर, वॉल्यूम आ गया 22.3, तो C into V करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। This is 4.46 10 raised to power. नहीं, एवरेज कभी भी 3 की नहीं ले सकते, एवरेज हमेशा 2 बेस्ट की होती है। सबको लेके आप उसकी एवरेज नहीं लेनी, ऑलवेज 2 बेस्ट have to be taken first and then average is taken. So it's 4.46 into 10 raised to minus 3. Oh, sorry, minus 4. कितने moles डाले आपने potassium मैग्नेट? देखिए ये मोल्स आ गया आपके पास पोटेशियम मैंगनेट के। Are you seeing? ये आपने कितने moles डाले? 10.33. Okay. 5 moles of iron sulfate react 1 mole of manganese. ठीक है, यानी कि iron अब वो कहते हैं 5 moles of FeSO4 react with 1 mole of potassium मैंगनेट। याद रखें, आई होप आपने भूला नहीं होगा कि FeSO4 फ्लास्क में था और आप मैंगनेट ऊपर से ऐड कर रहे हैं। वो कह रहा है 5 moles of FeSO4 रिएक्ट करते हैं 1 मोल मैंगनेट से, तो आपने पार्ट डी में मोल्स निकाल लिए पोटेशियम मैंगनेट के, इनटू 5 करेंगे तो मोल्स ऑफ FeSO4 आ जाएंगे in 25 cm3 in the flask। 2 आयन और मैंगनेट जो है वो रिएक्ट करता है 5:1। So basically FeSO4 में Fe2 प्लस है, 4.46 10 raised to power -4, तो कितने मोल्स होंगे आयरन? तो आप into 5 कर दें, रेशियो अप्लाई कर देंगे। It's 2.23 10 to -3। ये मोल्स हैं आयरन टू आयंस के 25 cm3 में। वो कह रहा है 250 में कितने होंगे? so basically ये मोल्स आ गए 2.23 10 raised to -3 moles of Fe2 positive in 25 cm3। अब आपको याद है ना, ये आपने 25 cm3 250 से निकाला था, आपने पिपेट आउट किया था 25 cm3। अगर इतने मोल 25 cm3 में हैं तो फिर 250 में कितने होंगे? तो into 10 रेशियो ये है बेसिकली। 10 raised to power -3 moles are in 25 cm3, तो in 250 cm3 there will be x, तो into 10 तो हो जाएंगे 2.23 10 raised to power -2 moles। ठीक हो गया? Using answer to F, calculate the mass of FeSO4 that the original sample contains। ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये आपके पास मोल्स आ गए 2.23 10 raised to power -2 मोल्स, ये है 250 cm3 में। जाहिर बात है यही मोल्स ओरिजिनल सॉल्ट में होंगे ना, क्योंकि आपने ओरिजिनल सॉल्ट में हाली सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था और आपने पानी डाला था, तो जो मोल्स 250 cm3 में वही मोल्स स्टार्ट भी होंगे FeSO4 के। अब कहता है यूज योर आंसर टू F,
you calculate the mass of FeSO4 in the original sample of FeSO4.xH2O. तो अगर ये मोल्स है FeSO4 के, ठीक है, तो how will we calculate the mass? तो observe. So part G में I think आप उसका mass निकाल लेंगे. तो आप पहले molecular mass निकाल लें. मोल्स आ गए हैं FeSO4 तो मल्टीप्लाई करें. I think Right. I think So it is 56 plus 32 plus 16 into 4. Moles आपको पता है part F से. Moles into molecular mass is the mass. So it's 3.39 grams. सर ये mass आ गया आपके पास FeSO4 का जी. सर ऐसे क्वेश्चंस में सर जो स्पेसिफिक जो स्पेस गिवन है नीचे मोल्स की और ग्राम्स की गिवन, तो सर उसमें अगर आंसर ना लिखें तो नंबर कटते हैं? Yes, उसमें आपने लिखना होता है. ओके सर, थैंक यू. Now it's part. अच्छा ये पहले मैं आपको दिखा रहा था पीछे. याद रखिएगा स्टार्ट में आपने 4.96 ग्राम लिया था, ठीक है, जस्ट रिकॉल. एक सवाल था जी. सर, ऐसे क्वेश्चंस में ट्रैक रखना थोड़ा मुश्किल होता है सर, तो फिर इसका क्या आसान तरीका है सर? बिकॉज इसमें थोड़ा सा लाइक मार्क्स भी मेरे कटते हैं जब खुद भी प्रैक्टिस कर रहा होता. इसका सबसे आसान तरीका ये जो मैंने किया है, मैंने साइड में डायग्राम बनाई. आपने गौर किया कि एग्जामिनर जो लिख रहा था मैं उसकी डायग्राम बना रहा था और आप वो डायग्राम में वो वैल्यूज लिखते रहे. दैट्स द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस. इस तरह आप वो रिकॉल भी करते रहते हैं और आपको याद आता है कि आपने क्या चीज क्या डाली थी. राइट सर. So the best way is to make the diagram and add the values in the diagram. अब वो यहाँ पे कहता है ना कि बताएं फिर कितना पानी होगा, तो आपने स्टार्ट में 4.96 ग्राम्स वे किया था FeSO4.xH2O का. अगर उसके अंदर FeSO4 3.39 है तो पानी कितना होगा माइनस कर दें. It's 4.96 minus 3.39. Yes, Abdullah. Basically FeSO4.xH2O जितने मोल्स इस सारी सॉल्ट के हैं उतने मोल्स FeSO4 के भी तो होंगे, क्योंकि FeSO4 एक मोल है पूरी सॉल्ट में. तो जितने मोल आपकी पूरी सॉल्ट के हैं उतने मोल FeSO4 के भी होंगे. Now part I. Use your answer to H. Calculate the number of moles of water in the sample. तो आपके पास mass आ गया है, इसको इसके molecular mass से divide करें तो moles आ जाएगा आपके पास पानी के. तो 1.57 divided by 18 will be the moles of water. यानी कि 0.087 are the moles of water. सर बट ये नहीं लिखा था कि वो इंटीजर होल नंबर वैल्यू है, आई गेस, वाटर की. नहीं अभी तो हमने x कैलकुलेट ही नहीं किया. अभी तो x कैलकुलेट ही नहीं हुआ. अभी तो x कैलकुलेट होना है. अभी रेशियो से x होगा कैलकुलेट रेशियो से. हमने मोल्स ऑफ वाटर निकाले हैं. सर ये एच पार्ट समझा दीजिए दोबारा. तो इतने मोल्स टेक्निकली पानी के हैं. ओके, और ये मोल्स थे FeSO4 के. आप देख रहे हैं पार्ट F में आपने जो मोल्स निकाले हैं, पार्ट F में वो मोल्स हैं FeSO4 के. पार्ट I में आपने मोल्स निकाले हैं वाटर के. अब आपके पास मोल्स आ गए हैं FeSO4 के, मोल्स आ गए हैं पानी के. अगर मैं मोल रेशियो लूंगा तो रेशियो आंसर आ जाएगा. अब अगले पार्ट में आपसे रेशियो पूछेगा. जिस तरह आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं इस तरह ही आप वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी निकालते हैं. तो यू हैव मोल्स ऑफ FeSO4, you have moles of water. Now let's take ratio. So the ratio will tell us how many moles of water are there. ये जो पार्ट जे रेशियो आ गई ना, कि एक मोल FeSO4 के साथ कितने पानी होंगे. तो आपको पता है कि ये जो आपको 2.23 10 minus 2 moles of FeSO4 has 0.087 moles. So 1 mole will have X. तो जो आपने पार्ट F में निकाले थे FeSO4 के anhydrous moles वो 2.2 थे minus 2 थे. तो अगर इतने मोल के साथ 0.087 moles of water है तो फिर एक मोल कितना होगा? X होगा. So the value of X is therefore 3.91. हम उसको 4 में लगा था कि इंटीजर होता है. It's an integer.
part L. When iron 2 fixed crystals left to stand in air, a yellow solid is formed to surface the crystals. Absolutely. Iron 2 ions oxidize to iron 3 ions. It suggests the identity of the yellow solid. It's actually iron 3 sulfate. It's oxidation. Why is it formed? It oxidizes in air. Oxidation होती है basically in the presence of oxygen. तो oxygen plus को oxidize कर देगा. The yellow solid is dissolved in water. Aqueous is added. जब आप aqueous anyway chat कर रहे हैं, ये तो क्या test of cat ion. जो हम पैरामीटर chat करेंगे, जो लिखी हुई red brown PPT. तो आपको red brown PPT observe होगा, and it's solid in excess. Red brown PPT and it's solid in excess. होल्ड कीजिएगा. How does this code come? बेटा वो बोल रहा है कि ना वो 3.9 है पार्ट j में. तो आप इसको डाउनलोड करना है. उसने कहा था x से कितना है? तो मेरी x चली गई 0.99 में. तो आपको क्या करना है डाउनलोड? हाँ बिल्कुल. वो आपको क्या कह रहे हैं बेसिकली कि आयरन 2 अगर आप ऑक्सीडाइज हो गए तो येलो सॉलिड बना लिया. अच्छा वो ब्राउन येलो रेड ये टेक्निकली एक ही फैमिली है. आई मीन आप कहने कि येलो द लाइटेस्ट शेड फिर ब्राउन डार्क शेड रेड डिफरेंट डार्क शेड जाता है. राइट तो सामने मुझे येलो कभी येलो ब्राउन होते हैं, कभी ब्राउन रेड होते हैं. You can write any color of it. लेकिन इतना तो होता है कि iron 2 ions येलो नहीं होते, greenish होते हैं. So that's why iron 2 iron 3 बन गया. Analysis now it's question 9. When W is compound, you change to 2 ions. Okay. Complete a table by adding a conclusion test A. The observations for test C and D, and both the tests of observation test D. Achha. Part A. W is also water and the solution is very far parts. A color is used to make W is a compound of translucent metal.
या फिर आप कहीं ट्रांसमिशन लाइन, right? So the transmission line is present. D part one. कहता है एक्टिव चार्ज चाहिए और फिर आप क्लोराइड्स हैं, तो क्लोराइड्स आप ऐड एक्टिवेट, तो blue is used, and I hope remember that blue is insoluble in excess, right? The blue is insoluble in excess. This is chlorides. C part one. So the second part, आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर chloride कर रहा है, तो आपको पता है कि again blue is black ammonia. लेकिन I hope remember excess में ऐड करेंगे तो blue will dissolve and D blue solution will form, right? So blue will dissolve and D blue solution will form. So you can say iodines. Part D. देखिए first part में energy चाहिए है, second part is that was ammonia चाहिए है, अब आप आगे third part तो फिर उसमें तीन डिवाइड करके solution को, अब आपने writing का test लिखना है. I won't remember, it's more like a knowledge based question. You should know what test to write iodines. So you add dilute nitric acid followed by silver nitrate. And since chloride is present, the observation will be white PPT. और white PPT AgCl का होगा, right? So the formula क्या हो गया? Cu is 2 plus is negative 1, so CuCl2. So that's how it is. Part A आप कह रहे हैं बार-बार. देखिए बेटा Cu2 plus एक आयन है और एक आयन राइट आयन है. एक Cu plus आयन है, वो प्रॉब्लम है राइट आयन है, क्या करेगा? CuCl2 हो जाएगा. Can you see part J? Okay, we're going to use the concept of F and I. Calculate the water content one लेकिन part F में आप part F मोल का निकाल लेते हैं इस फोर के, वो 2.2 times 2. part I में आप लोग निकाले वाटर के, वो तो 0.087 मोल्स. इसका मतलब है कि 2.23 10 2 moles of F4 they combine with 0.008 moles of water. So one mole F4 will combine with how many moles of water? X. So if you apply करें तो X is 40.91. यानी कि ये mole F के साथ साथ 3.91 moles of water attach होंगे. तो value of X का negative 4. ये आप इसमें कर दिया क्योंकि ये उसका X नेचर है. Guys. Your question is A. आप replace करें आपका question. आप क्या transitional का charge क्या होता है? Like I didn't get your question. आप क्या सोचना चाह रहे हैं? हर transition में आपका I plus 3 plot होता है plus 2 silver होता है अंग्रेजी plus 1 manganese is plus 7 plus 2 CR is plus 6 plus 3. Okay. I'll let you आप screenshot ले उसको Sunday जी Sunday okay आप अलग अब मेरा क्लास नहीं हुई थी. ठीक सर आपसे सवाल है सर मतलब क्या करना चाहिए मतलब सिर्फ पीट में करें सर या फिर सारी पेपर करें.
सारे करें जितना ज्यादा आप करें जितनी प्रैक्टिस करें उतना बेहतर है और प्रैक्टिस वाइड रेंज रखें और एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस रखें